How many of you would like to have solar tea with me in my Energy Swaraj Yatra bus and to discuss how we can solve the problem of climate change together? Hi everyone, welcome to you all once again for Solar Chai Pe Charcha with Professor Solanki. And in this Solar Chai Pe Charcha, I am trying to bring you very special guests and try to discuss with them what we can do with the solar and how we can solve the problem of climate change. So today, in my Energy Swaraj Yatra bus and on Solar Chai Pe Charcha, we have very special guest, Smriti Bajaj, and she is the CEO of Luminous Solar, and I'm sure everybody knows Luminous now. So, Smriti, thank you so much for joining me in Solar Chai Pe Charcha. I would not miss the opportunity of being in this lovely bus with you, Mr. Solanki, ever. Thank you so much. So, now tell me that how solar is growing in the country. It has been, we see the acceleration in solar. How do you see Luminous fitting into the whole picture, and how you are helping in this acceleration? I think that's a great question. See, and you know better than most that solar is something that is the need of the hour. It is not something that we should want to do, it is something that we need to do. I think there is a lot of recognition in industry, government as such that there is a need to bring those solutions to the market. On one side, there is a lot of work happening on the supply side, which is building capacity for PV panels, building technologies, making sure that cost-effective solutions are actually available to customers, be it home customers who can offset some energy costs by having solar. And I love what you say, that solar is not an investment, it is a necessity. We have to go back to the energy source. And then the other piece is commercial and industrial, where it is actually directly linked, whether we like it or not, to the profitability. With rising power costs, with perhaps the challenge of decarbonization that India faces, I think it is incumbent upon all of us to responsibly work towards a sustainable future. And I think in that, Luminous Solar plays a part. What are we doing? I'll say we are doing three key things. I think number one, we are propelling solar by making investments on the supply side. So we are opening a PV panel factory. And Professor Solanki, it's not just that we are opening a factory. We are actually bringing technology capability into the country. You talk about localization a lot. Yes. Luminous lives localization. So we are bringing that technology, that know-how, and we are learning as well. The more we learn, the more localized it is, the more we'll be able to offer solutions that are closer to the customer. And that's the overall intent, that's the role we see ourselves playing. Second is inverter technology. We are proud inverter technologists. We'll continue to do that and bring that to the solar conversion. Many people in India and consumers think कि solar के panel लगा लो, उसी से एनर्जी बनती है, उसी से काम हो जाती है. एक्चुअली एक छोटा सा यंत्र साथ में चाहिए होता है, उसको इन्वर्टर कहते हैं कन्वर्जन के लिए, वो भी बनाना पड़ता है. हम वो भी बनाते हैं और सोलर के लिए बहुत सारी रेंज लेकर आ रहे हैं और आ भी गई है, और ऑफ ग्रिड में भी एंड ग्रिड टाइप में भी. एंड फाइनली देयर इज बैटरी. We know that in India, on my last check, the grid is challenged. Distribution network is challenged. मेरा कहने का मतलब है कि आज भी पावर कट होता है और आज भी शायद हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हर जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के पावर के डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सकें एक साथ ही. तो एक तरीके से उस चैलेंज को लीपफ्रॉग करने के लिए हमने कुछ इन्वर्टर सोल्यूशंस तैयार करे हैं, जिनको हम हाइब्रिड इन्वर्टर्स कहते हैं. और उसमें क्या है कि वो पावर बैकअप का यूनिट भी है और ग्रिड टाइड का यूनिट भी है. तो जब बत्ती जाए तो वो आपकी जो एनर्जी उसने सोलर से बनाई है वो बैटरी में स्टोर करी हुई यूज कर सकता है. और अगर आपको वो नहीं करना है तो उसको हम ऐसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो आपका सरप्लस पावर जो है ग्रिड को वापस बेच सके. तो ये जो एक सोल्यूशन है, इट इज वन ऑफ दोज दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि ये वही बना सकता है जिसको हिंदुस्तान की समझ है. So Priti, we have seen, I have also seen particularly, I have been working in this field for more than 2.5 decades now, as a researcher and a professor. But it's so nice that how the Luminous brand has come up, and now we see that everywhere. Sachin Tendulkar, talking about Luminous. How this has happened and how it has grown, and how many X it has grown from, let's say, 6 years or 10 years back till today. Actually, Luminous is a very inspiring entrepreneurial journey. एंड ये जो ब्रांड बना है ये कस्टमर्स और हमारे पार्टनर्स और हमारी टीम की मदद से बना है. इसका क्रेडिट किसी एक जने को नहीं जाता, पर एक विजन को जाता है जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया. बस उसी तरह जैसे एनर्जी स्वराज का विजन है ना, वैसे ही लुमिनस का एक विजन बना था मेरे ख्याल से कोई 10-11 साल पहले. इसमें हमारी लीडरशिप टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे, जिनका वो एक आइडिया था. छोटी सी कंपनी थी, कोई
200-300 करोड़, जिसने एक सपना देखा कि एक दिन मैं 10x 15x हो सकूंगी, एंड उसमें एक जर्नी रही है। एंड मैं ये कहती हूँ कि ल्यूमिनस इज द मोस्ट वंडरफुल स्टार्टअप स्टोरी ऑफ इंडिया, यू नो, एंड उसमें इट हैज गॉन थ्रू द होल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, बिल्ट अ ब्रांड, एक तरीके के हमारा अपना टेस्ला है। वी शुड बी सो प्राउड, मतलब कि हमने ये बनाया, हमारे लोगों ने ये बनाया, हमारे कंज्यूमर्स ने हमारा साथ दिया, अडॉप्ट किया, सचिन जी ने हमारा साथ दिया और उसका बहुत जिसे कहते हैं महत्व भी रहा हमारी जर्नी में। एंड देन यू नो ऑफ कोर्स वी बिकेम पार्ट ऑफ अ ग्लोबल जायंट सच एज Schneider Electric, and that propelled us to another next level as well. But what remained constant is the entrepreneurial spirit of the team that is. You know, I as a professor in IIT Bombay, I also incubated a company. It is called K-Watt Solutions, a kilowatt solution. And it was exactly this dream I had, you know, like Luminous type, that there should be a solutions which are kilowatt level, because everybody was talking on megawatt and this, and then I said no, that's not the right thing. That's right. We need to provide the kilowatt solution, and but I'm probably good as professor, not as good as entrepreneur. आपको अगली बारी कोई आइडिया आए आप मुझे फोन कर देना, बना हम देंगे. Good. But you know, Preeti, that is where I feel not so happy about the whole solar sector growth. And that's why I'm sitting in a bus and part of my Energy Swaraj Yatra, that people in general do not understand energy. In general, and in this problem of climate change, it's already happened. Climate is not changing; it has changed. Rather, it is accelerating. And the manner we are using solar energy, left and right, and is also going to create another problem. I mean, solar is a great solution. But let me share a small story here. Maybe audience will also love it. How not to use solar, for example. You know. So एक बार मैं गुजरात में था, नेटिव शेयरिंग है ना, गुजरात में था, तो वहाँ पे किसी ने मेरे लेक्चर के बाद में बोला कि सर थैंक यू सो मच, आपने आंखें खोल दी। मैंने क्या हुआ? बोले सर मैं मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, तो बोल रही थी भैया मेरे घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया, और पहले एक कमरे में एसी था, अभी तीनों कमरों में एसी लगा लिया है, फिर भी बिजली बचती, बताओ क्या करो? आई थिंक द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट पीपल आर यूजिंग सोलर फॉर सेविंग मनी, नॉट एनवायरमेंट। पैसा बचाने के लिए करते हैं, पर्यावरण के लिए नहीं। एंड सोलर इज डेफिनेटली गुड देन कोल इलेक्ट्रिसिटी एट एनी गिवन टाइम, बट सिर्फ पैसा बचाने के लिए करेंगे तो फिर किसी न किसी तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाउ डू वी चेंज द माइंड कि नहीं, पर्यावरण बचाना इज अ प्रायोरिटी, देन पैसा बचाना, क्योंकि दोनों के तरीके अलग हैं। ये इसको हम कहते हैं ना डिफिकल्ट है, इसको हम कहते हैं $1 million क्वेश्चन। मैं ये कहूँगी कि एक शुरुआत जो होती है वो एक नेसेसिटी से होती है। ऐसे सोच लेते हैं कि बहुत लोगों को लगता है कभी कभी कोई चीज़ रीच में नहीं है। जब हिंदुस्तान ने इंडिपेंडेंस का भी सपना देखा था तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने सोचा था कि ये हो पाएगा। तो एक मूवमेंट जो है शायद बनानी पड़ेगी थी एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। पर शुरुआत जहाँ से हो रही है, देखिए गांधी जी की इंडिपेंडेंस की जर्नी में भी टाटा ने स्पॉन्सर किया था, ठीक है। तो एक मैं ये कहूंगी कि कमर्शियल इंडस्ट्री और आप जैसे विजनरी की पार्टनरशिप जो है ये क्रिटिकल चीज है। ये हमेशा से हुआ है, इतिहास में हमारे ही देश में हुआ है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से पढ़कर आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा और JRD टाटा ने कहा चिंता नहीं करिए, आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो ये एक जने की प्रॉब्लम नहीं है, शायद हमारे को एक मूवमेंट क्रिएट करनी होगी। दूसरी चीज ये है कि वन थिंग आई एडमायर व्हाट यू से एंड आई लव दिस शर्ट, आई एम एनर्जी लिटरेट, आर यू। क्लाइमेट की अर्जेंसी है, वो सेंस ऑफ अर्जेंसी किसी को फील ही नहीं हो रही, और वो अर्जेंसी एक्चुअली हमें ऑलरेडी इम्पैक्ट कर रही है। इस बारी अप्रैल में लोग स्वेटर पहन के घूमते थे, मतलब ये कैसे हो गया? और मैं अप्रैल में यहाँ पर था और मैं इस बस में डबल कंबल ओढ़ के सोया था रात में। अप्रैल में मतलब तो क्लाइमेट शिफ्ट कोई ये थोड़ा ना कि कल आ रहा है, वो तो आ गया है, हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं। अब अगर वी आर asleep एट द व्हील, मतलब तो ट्रेन क्रैश हो जाएगा। सो ये अलाउ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे लाइसेंस मिलता है गाड़ी चलाने का, वैसे ही क्लाइमेट के रिसोर्सेज यूज करने का भी एक लाइसेंस मिलना चाहिए। नहीं, जो एनर्जी लिटरेसी है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनर्जी लिटरेसी इज अ लाइसेंस टू यूज एनर्जी। आप एनर्जी यूज करोगे और बिना जाने करोगे तो नुकसान ही करोगे, गारंटी है। तो आप जब
जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं, आपको एनर्जी का यूज नहीं करना चाहिए. तो इसलिए एनर्जी लिटरेट होना चाहिए, तभी जाके आप एनर्जी को यूज करो. एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग एज विद माय टीम एज एनर्जी स्वराज फाउंडेशन. वी आर ट्राइंग टू मेक एवरीबॉडी एनर्जी लिटरेट. एंड आई होप एंड आई रिक्वेस्ट दैट एवरी person in Luminous should be energy literate, including you. Absolutely. मैं आपका टेस्ट देने आ जाती हूँ. Very good. And not only that, if you can also, start making this part of a component of our, sales, for example, कि आप energy literate बनो और solar अच्छे से चलेगा. You are going to get more benefit. I think that can become a good combination and can spread fast. Possibly, absolutely. मतलब सोलर में तो एक्चुअली क्या ना, इट्स अ कॉन्स्टेंटली लर्निंग जर्नी, क्योंकि चीजें इवॉल्व भी तो होती रहती हैं टेक्नोलॉजी वाइज. तो व्हाटएवर वी कैन डू टू सेंसिबली मेक दैट हैपन, वी विल सर्टेनली बी ओपन टू इट. Great. Another thing that I see is solar has to grow much more than what we are doing right now. Literally, I keep giving example. MNRE, Ministry of New and Renewable Energy, came in 1981. It has taken us 40 years to come to this level. And our electricity contribution of solar is only 4% out of the whole mix. It's absolutely nothing. And out of the whole energy, कुछ भी नहीं है. So we are not going to wait for another 40 years. We don't have another 40 years. My climate clock says me 5 years and 294 days. How do you, as a CEO of this Luminous, how do you think? Do you become restless कि इसको 10 गुना कैसे करे, 100 गुना कैसे करे, 500 गुना कैसे करे? अगर आप मेरे हेड ऑफ बिजनेस इंडिया से बात करोगे तो वो कहेगा मैडम वो तो रोज एक नया आइडिया आ जाता है. आई एम कॉन्स्टेंटली रेस्टलेस. आई फील द अर्जेंसी. आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हैं. मुझे ये लगता है कि यस, द ग्रोथ इज सुपर लो. वन इज अवेयरनेस. पीपल थिंक कि सोलर महंगा है, मुश्किल है. आई थिंक वो चीज़ हमें डीमिस्टिफाई करनी होगी, और उस पर हमारा जो इंडस्ट्री का काम है कि हम इसको कैसे, इस इंफॉर्मेशन को और इन सोल्यूशंस को कैसे इजी करते जाएं, जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं. दूसरा ये मैंने देखा है कि मैं अगर पॉलिसी पोजीशंस देखूं वो बहुत अच्छी हैं, शायद हम उनको एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकते हैं. टू फॉर एग्जांपल हमें थोड़ा क्रिटिकली दूसरी कंट्रीज की अच्छी पॉलिसीज को देखना चाहिए, स्पेशली जहाँ पे सोलर आगे बढ़ चुका है, अडॉप्शन बहुत आगे बढ़ चुका है. मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. आप जानते ही हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रही हूँ. तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल जब आप सोलर इंस्टॉल करने जाते हैं तो जो सोलर इंस्टॉलर आपको सोलर बेच रहा होता है वो ऑन इनवॉइस आपको किलोवाट के हिसाब से एक कैलकुलेटेड डिस्काउंट देता है सर्टिफिकेट्स के हिसाब से. तो हर 1 किलोवाट का कोई ऐसे सोच लीजिए 10 या 20 सर्टिफिकेट बनता है, और अगर आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो कहीं 35 सर्टिफिकेट आपको मिले. हर सर्टिफिकेट की एक वैल्यू होती है. वो सर्टिफिकेट जो है आप एक क्लियरिंग मार्केट पे जाके बेच सकते हैं. तो कस्टमर को उसी टाइम डिस्काउंट मिल गया, तो वो शांति में है. फोकस ऑन एक्चुअली पुटिंग द जनरेशन सोल्यूशन. सोलर इंस्टॉलर कहीं और नहीं जा रहा, उसको किसी मार्केट में जाके किसी अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है. सीधा इंटरनेट पे जाके क्लियरिंग मार्केट पे वो बोलेगा मेरे पास इतने सर्टिफिकेट है, मुझे बेचने हैं. उसका प्राइस भी प्री सेट होता है और उसी टाइम डिजिटली. अब यूपीआई वाले देश में डिजिटली उसी टाइम ट्रांसफर होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट. ये हो रहा है दुनिया में. हमें सिर्फ सीख के, और हिंदुस्तान की तो ये खासियत है, सीख के एग्जीक्यूट करने में तो हम मास्टर हैं. तो हमें absolutely. So that brings me to another point which I keep thinking about it, and I keep also telling many governments. I feel one of the best things governments can do is get out of this business. In the sense that solar has now grown enough. Imagine I did my PhD in solar way back in 99. I started, and it has really grown leaps and bounds, and we are already at grid parity. When something is at this level, I feel personally, and I want your comment on that, that government should be out of this. You do it on your own. जो खरीदना है भाई, ट्रैक्टर खरीदने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाना पड़ती, राइट? कार खरीदने के लिए पॉलिसी नहीं बनाना पड़ती, फ्रिज खरीदने के लिए पॉलिसी नहीं बनाना. Why should there be a policy for the solar? And let it be free market. And I believe, my personal belief and my personal feeling is that the moment government declares, and I would request Prime Minister and ministers to declare कि कल से government is out of, I'm not going to give single penny on subsidy. I personally believe the solar will grow 4 times, 3 times more than what it is actually being done, driven in the policy driven market. हाँ, तो I will agree with you that medium to long term
कोई भी इंडस्ट्री भी सब्सिडी पे धंधे सर्वाइव नहीं कर सकती. सो इंडस्ट्री हैज टू इनोवेट, लाइक इट हैज टू बी वायबल. ये सब्सिडी का इंजेक्शन जब भी लगता है ना, इसमें मेरे ख्याल से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़े से. डिस्ट्रैक्ट होता है और हार्मफुल होता है. बिकॉज आई नो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि गांव में जब जाते हैं कई किसान होंगे, फार्मर्स होंगे, वो कैन अफोर्ड सोलर वाटर पंप, बट सोलर वाटर पंप का इतना सा बजट है और 1 करोड़ किसान जो लाइन में लगे हैं. So poor people keep waiting for it, and I'm sure any government. I mean, I have been brand ambassador for government of Madhya Pradesh. I know इतना ही बजट होता है. We know central government का इतना ही बजट होता है. Divide with the population, so per capita is only like 30 rupees, 40 rupees, 100 rupees, 200 rupees. That's never going to be enough for the population that we have. I feel the government should declare कि no subsidy, and then they should take Sachin Tendulkar, Amitabh Bachchan to promote कि use solar energy. उतने कम पैसे में काम हो जाएगा. आई एम काइंड ऑफ विद यू. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. मैं यही कहती हूँ. लोग कहते हैं कि प्राइस कब ड्रॉप होगा. मैं कहती हूँ जब डिमांड बढ़ जाएगी, आप यूज करना शुरू कर दो, माल बिकना शुरू हो जाएगा. सब ये तो एक्चुअली कस्टमर के हाथ में है. एंड द मोर आई थिंक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ये फिलोसफी है. और जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर में जिंदगी में किसी को कोई सब्सिडी नहीं मिली. सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री इतनी बड़ी कहाँ पर पहुंच गई. फिनटेक में किसी को सब्सिडी नहीं मिली, कहाँ पहुंच गई. चक्कर ये है हमारी इंडस्ट्री में एक तरीके का थोड़ा सा फ्रिक्शन रहता है सर. सोलर ने ग्रिड पैरिटी कर दी, पर पंजाब में इलेक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त हो गई. मार्केट इंटरवेंशन में डिस्टर्बेंस है, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस. कोई जाके बैंक की चार्जिंग फीस तो एलिमिनेट नहीं कर देता ना इलेक्शन के लिए. तो अब अगर हमारा जो चीज हम बना रहे हैं, एक तरीके से दोनों चीजें जैसे कहते हैं ना कि दोनों करनी होगी. हाँ, कि वो ना, बट आई होप कि वो दैट देयर इज अ कमिटी दैट इज बीइंग फॉर्म कि फ्री नहीं रह सकते. होपफुली दैट विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड सी एक्चुअली क्या है कि अगर जो भी चीज फ्री होती है उसकी वैल्यू, और अगर हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए. यू नो, तभी दुनिया में कार्बन टैक्स डिस्कस हुआ. क्यों हुआ? ताकि एक नेगेटिव वैल्यू एसोसिएट करी जाए उस चीज के साथ जो नहीं करनी है. हम लोगों को क्या करें सोलंकी साहब, हमें वही चीज समझ आती है, पैसा आता हुआ या जाता हुआ, जब तो वो समझ में आता है. So that's just one last thing before we close this discussion, and so interesting discussion, that again personally I believe that if you want to promote solar solution for 100x or 1000x, somewhere you have to go beyond economic reasoning. बिकॉज इकोनॉमिक रीजनिंग वो वहीं तक ले जा सकती है. आपको खरीदना है, नहीं, यदि पैसा होगा सस्ता और नहीं खरीदूंगा, तो ये गवर्नमेंट सस्ती बिजली देगी तो नहीं खरीदूंगा. आई एम पर्सनली एज पार्ट ऑफ माई एनर्जी स्वराज यात्रा एंड मूवमेंट ट्राइंग टू नॉट टू मेक एन इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट फॉर अडॉप्टिंग सोलर, बिकॉज बाय नेचर इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट हैज इट्स ओन लिमिटेशन. एंड यू आर पॉइंटिंग आउट कि ना वो इट क्रिएट्स दोज हिंड्रेंसेस. ऐसा कोई आइडिया आपके माइंड में आता है कि वो पैसा छोड़ो, मुझे तो सोलर अडॉप्ट ही करना है, ऐसा कुछ? आप सोलर में पीएचडी हो, मैं डबल मेजर हूँ अप्लाइड फाइनेंस. राइट. सो ये मतलब जिसके ना सीरियस ऑड्स वाला क्वेश्चन है. मेरे को तो सारे आइडिया ही ऐसे आते हैं. पर एक तो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर दिस कम्स डाउन टू विजन, राइट. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त कर रहे हैं, वो नहीं करते, पर स्टेट और फेडरल मिलके उस स्टेट में इनकम टैक्स क्रेडिट इशू करते, मेक इट सुपर वायबल. अगर आप अपने घर पे सोलर लगा रहे हैं और आप एक अच्छी ब्रांड से ढंग का सोलर सोल्यूशन लगा रहे हैं, उससे आप दो काम कर रहे हैं. आप ग्रिड का खर्चा कम करवा रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा बचता है, और दूसरा आप एनवायरमेंट का ख्याल रख रहे हैं, और तीसरा क्योंकि आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन अ वे कंट्री के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो यू गेट सम टैक्स राइट ऑफ अगेंस्ट इट इन योर ओन इनकम. दिस इज विजनरी स्टफ इन माई ओपिनियन, विच वी कैन टेक अ पोजिशन एज अ कंट्री. अगर प्रधानमंत्री जी का सपना 5000 गीगावाट का है, मैं कहूंगी कि एक नया सपना देखा जा सकता है कि घर घर पे सोलर, और घर घर में टैक्स क्रेडिट, और घर घर में क्या कहते हैं आप उसे, वातावरण के लिए एक अच्छा सिटीजन. ये किसी देश ने नहीं किया. नो, ग्रेट आइडिया. सो वी शुड, आप लिख लो और जब मोदी जी से मिलो तो उन्हें बता देना. यदि मोदी जी मुझसे मिले तो मैं जरूर बता दूंगा.
So with this, we are almost finishing time, but because आपने सोलर की चाय पी है, तो आपके ऊपर एक कर्जा हो गया है. हाँ जी. तो आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा. And we believe very strongly as a part of Energy Swaraj that one of the best way of helping the environment is to reduce your needs. You know, avoid, minimize, and general. And I always request my guests to think of something that you can avoid from today. You know, तो आपने सोलर की चाय पी है, तो can you think of something that you will start avoiding from today? From today, तो मैंने ये आपका लेक्चर एक्चुअली हैदराबाद में सुना था. उसके बाद से मैंने प्लास्टिक बोतलें हाथ लगानी बंद कर दी. Okay, great. तो ये तो मैंने कर दिया है. आज से कुछ नया चालू करना. आज से कुछ नया चालू करना पड़ेगा. तो मैं ऐसे सोच लेती हूँ. एक्चुअली मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, वरना मैं कहती कि सोलर ही लगा लेते. भाई तो मैं आपको एक सरल सा उपाय दे देता हूँ. हमने एक दशहरे से बहुत मेजर लेवल पे हम चालू कर रहे हैं. नो आयरन क्लॉथ्स डे. एवरी मंडे इज नो आयरन क्लॉथ्स डे और रिंकल डे. सो उस दिन आप बिना प्रेस के कपड़े पहन के, एंड उम्मीद है कि पूरा लुमिनस विल जॉइन दिस, सो दैट वी all train our minds small step, because size of the planet is finite and all resources are finite. तो हमें जरूरतें कम करना ही पड़ेगी. There is no way mother nature can afford what you and I can afford. चलो आज से मैं 16 सोमवार तो कमिट कर देती हूँ. अरे thank you so much, Priti. Thank you so much for joining me on Solar Chai Pe Charcha. Thank you. And I hope the people who are listening not only will learn something and will get some message from it, but with they, in your own capacity, you are also going to have some pledge for not damaging the environment for at least 16 Somvar. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for joining. Thank you.